Introduce yourself. I am Sandhya Patel. I belong from Jabalpur. I have graduated from Bachelor of Engineering in Computer Science. I am learning software testing course in Seva Concept Solution. Okay. Yeah. What is software testing? It is an important phase of SDLC. It is a functionality, and we can match the we can. Okay, you tell. What is software testing? It is important phase of SDLC. It is used to verify and validate an application and process of. One second, sir. It provides quality assurance and quality control to customer, and we will check in this testing in this. Assurance and quality assurance and assurance and I'm sorry. You tell. What is software testing? Past to present. 1 second, sir. Expected result versus actual result. If is pass, then if we sorry. Okay, you tell. ठीक है, आप अपना डेफिनेशन दीजिए. शुरुआत में सभी से दिक्कत आती है. I will explain. Yes. Try to speak in English. If you are mix English you can use. Tell me. Software testing is a step by step of SDLC, which is software development life cycle, where we can manage to application where I provide to customer or client. We are providing quality assurance and quality control. Okay. You tell. What is software testing? Software testing is the process of evaluating for the requirement. मतलब जैसे अगर हमारे घर पे आया है, कोई भी मान लो कोई मेहमान आए, तो अगर उन्होंने बोला कि चाय, तो मतलब उनकी डिमांड के हिसाब से हमें सारे टेस्ट करने पड़ेंगे कि मतलब टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर. You say. What is software testing? Software testing is a process of evaluating and verifying the software product and provide the quality assurance and quality control for client. This is the exact definition. You can simply explain in definitions the main part. Okay, जैसे कभी आप कोई definition बताते हैं तो क्या होता है कि जो मेन पार्ट होता है वो आपसे स्किप हो जाता है, बाकी दुनिया की पूरी कहानी सुना देते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये है. Simply you can simply say that software testing, it is the most important phase of software development life cycle. Okay, that is used to provide quality assurance and quality control. Okay, simply you can define it. Okay, yeah, if we want to verify and validate any software product, okay, that fulfill the market's needs or client requirements, that is called software testing. तो जरूरी नहीं है कि आपको रटा आंसर देना है, आप समझा के भी एलोबरेट करके भी किसी भी चीज़ का डेफिनेशन बता सकते हैं. इसमें आपको घबराहट भी नहीं हो, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली मैनेज करिए ना. जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर यदि आप टेस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो क्लाइंट की नीड है या जो मार्केट जो उस सॉफ्टवेयर की नीड है वो नीड फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं. ओके, नाउ यू टेल मी द नेम ऑफ फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. याद नहीं आ रहा, बाकी याद. तो जो याद है आपको बताइए. So STLC means, what is the full form of STLC? Software testing life cycle. इसमें क्या क्या फेजेस होते हैं इनिशियल से लेकर के लास्ट तक? मुझे SDLC की याद आ रही है वो. आप बताइए. STLC stand for Software Development Life Cycle. बहुत बढ़िया. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, सॉरी सर. STLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ देखो साइकिल. ये सबके साथ होता है. ये इंटरव्यूज में यही वीकनेस है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो डर के चक्कर में आप जो चीज़ भूल रहे हो उसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. इसलिए ये इंटरव्यू नहीं है, ये इंटरव्यू का प्रिपरेशन सेशन है, ये क्लासरूम सेशन ही चल रहा है, समझ लीजिए आप. ठीक है, पहले आप दिमाग से ये बिल्कुल हटा दीजिए कि ये इंटरव्यू है. ये तो मैं बुलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो 99% के साथ यही होता है यहाँ पर.
ठीक है, वो धीरे धीरे अपने आप को फिर इम्प्रूव करता है। यस सर। बताइए STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ये होता है इसका फुल फॉर्म। क्या क्या फेजेस होते हैं इसमें बताइए। रिक्वायरमेंट प्लानिंग, गलत है। गलत है सही, आप तो बोलिए, आप अपना कर्म करिए, मैं फिर बताऊंगा क्या सही है क्या गलत। रिक्वायरमेंट प्लानिंग, डिजाइन इन्वायरमेंट सेटअप, हाँ, एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप बताइए कुछ। सर STLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल विच इज़ इन्वॉल्व रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसके बाद होता है टेस्ट प्लान होता है, फिर इसके बाद टेस्ट डिज़ाइन होता है, इसका नेक्स्ट फेज पे होता है एनवायरनमेंट होता है, टेस्ट केस एनवायरनमेंट या मशीन एनवायरनमेंट अपन जिसको बोल सकते हैं। इसके बाद होता है टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है और लास्ट में मेंटेनेंस। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन एंड टेस्टिंग बोथ आर द सेम, यस सर। एंड आफ्टर दैट टेस्ट साइकिल क्लोजर। यस सर। ठीक है, जो टेस्टिंग का क्लोजर भी होता है ना। ओके। नाउ यू टेल मी द नेम ऑफ द फेस, टेल मी द नेम ऑफ फेसेस ऑफ एजाइल मॉडल। Sprint, ओके development, ओके demo, ओके नहीं, उसके बाद टेस्टिंग, देन डेमो। टेस्टिंग देन डेमो, या आफ्टर दैट आफ्टर देन डिप्लॉयमेंट। deployment. It is mandatory or it is optional? इट इज़ मैंडेटरी सर। Deployment is mandatory. नहीं Means what is deployment? सर, अगर उसका एक फंक्शन कंप्लीट हो गया है, अगर उसकी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट है, उसमें कुछ एरर नहीं, कुछ बग नहीं है, तो उसको डिप्लॉयमेंट कर दिया हाँ, जाएगा। वो डिपेंड करता है क्लाइंट नीड्स पे। यदि क्लाइंट चाहता है कि उसको डिप्लॉयमेंट चाहिए हर यूनिट्स का, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स द ऑप्शनल फीचर। हाँ, बट अगर वो नहीं होता है तो फिर से वो स्प्रिंट से प्रोसेस होगा सर। ओके, यू टेल मी व्हाट इज स्प्रिंट। Sprint, it is basically a time. ओके, That time is divided 1 week, 2 week, and 1 month. ओनली टाइम, नथिंग एल्स, Yes, time. excluding time, anything and any other features also decided in sprint. No, sir, time. You tell. Mike. हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, हिंदी में राष्ट्रीय भाषा है। हाँ बोलिए। स्प्रिंट वो है सर जिसके अंदर क्या बोलते हैं अपन, जो प्रोजेक्ट को छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, ताकि मतलब एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है तो अपन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। दैट इज कॉल्ड स्प्रिंट। Means sprint is the time estimation as well as task estimation. Okay, it is a set of tasks, ठीक है, to individual teammates. Suppose that you are the teams, okay, and I am providing a different jobs or tasks to you. So that thing will be decided under the sprint. Okay, which is the best software to manage a sprint? Tell me the name of any softwares that can manage a sprint easily. You tell. सर जीरा। Jira. Jira is the software that is used to manage a sprint. Okay. You tell. What is Kanban? कैनबन, इसमें सर हम बग रिपोर्ट कर सकते हैं और इसमें असाइन कर दिया जाता है किसे आप देना चाहते हैं, कौन टेस्टर है या सॉफ्टवेयर है जिसका जो पार्ट रहेगा वर्क का, तो उसमें उसे असाइन कर दिया जाएगा और उसमें रिपोर्ट इजीली देख सकते हैं कि किसका वर्क कहाँ तक पहुँचा है या नहीं। Okay. So means simply you can say that this is the agile methodology. Yes. Okay. Agile work into the two different type of design pattern. The first one is a sprint and second one is a Kanban. Kanban. Okay. So Kanban is another approach that is completely based on visualizations. Okay. So suppose that you are providing the task, then these tasks will be directly show up into the screens. Okay. And you can implement this task to show the screens. That is the features of Kanban. Okay. You tell what is the difference between bug and defect? Bug is a non-confirmed error that is found by a tester and reported by the developer, and defect is a confirmed error. Okay, who is reporting defect? It
it is reported by tester. Bug is also reported by tester. Defect is also reported by tester. So why testing provide two different names? They can simply say a bug. You say. What is the defect? What is the difference between defect and bug? Sir, bug may be a defect or not. It is depend on developer. If developer is expecting this is a actual defect, actual error, then it is called defect. It's depend on developer. Finding by tester and it is acceptable or non-acceptable depend by Means developer. if bug is acceptable, that is defect. 404 exact meaning you tell. सर क्लाइंट एरर होगा. 404 is client error. You tell. Status code. I am asking status code. Okay, 1 2 3 4. Okay, that is 404. You tell. 404 इज एरर है. जैसे कोई सा भी पेज अपन ने ओपन किया बट वो ओपन नहीं हो रहा है तो वो 404 एरर देता है. Page not found. Simply. If page is not found, then 4 5 errors. याद नहीं. You tell. सर सर्वर एरर. Server error. 5 is the server Server error. error. Okay, 2. सर Two series it means मतलब it works successfully and it gives good response. Okay, means it result will be okay. Result will be succeeded. That is called 2. Okay, 200 is status code. Their meaning is okay. Okay, this is implemented in API testing. You tell, what is API testing? API testing is mostly used for mobile testing. Means एक ही टेस्टिंग को वर्क टाइम को रिज्यूम करता है और सर इसमें मोबाइल टेस्टिंग, डेस्कटॉप टेस्टिंग और What parameters is required? Means what component is required to implement API testing? API testing के लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सॉरी सर. API testing क्या होती है बताइए? Sir, API testing is a load testing or endurance testing, volume testing. सर इसमें बेसिकली कम्युनिकेट मतलब करते हैं अपन. जैसे अगर व्हाट्सअप का एग्जांपल ले, अपन कुछ मैसेज भेजते हैं तो सामने वाले के पास मैसेज जाता है इस तरीके से. अगर इसमें मतलब API testing is basically used to check that API URL is properly working or Or not not. based on HTTP method. यस. Okay, API provide 4 different type of HTTP method. The first one is a GET, second one is a POST, third one is a PUT, Put. fourth one is a delete. Delete. Okay, these functionality we are cross-checking using URLs. URLs. That is called API testing. Okay, we will use some tools for API testing implementations. That is the Postman and Swagger. Okay, Swagger. these are the two different tools that is much popular in industry. Yes. Okay, Yes. so that is the API testing. Nothing else. You tell. What is smoke and sanity testing? सर स्मोक टेस्टिंग इनिशियल लेवल पे किया जाता है जब प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट ही बनता है. तो जो टेस्टिंग होती है वो इनिशियल लेवल पे होती है, वो स्मोक टेस्टिंग होती है. और सैनिटरी टेस्टिंग जब पूरा प्रोजेक्ट बिल्ट हो जाता है उस टाइम पे जो टेस्टिंग की जाती है वो सैनिटरी टेस्टिंग होती है. क्यों होती है? सर ताकि हम क्या बोलते हैं टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हम क्लाइंट को बता सके, क्वालिटी एश्योरेंस दे सके और जो भी बग है वो सब कुछ रिवॉल्व कर सके. इसका मेन मोटिव होता है कि व्हेन डेवलपर्स complete the applications modules as sub part, then they will provide build. Okay, the objective of smoke testing and sanity testing is that the build that is provided by the developers, it is stable or not, means it is working or not, major functionality it contain or not. Suppose that developers develop the login form applications and deliver to you, then firstly you will check that login form is properly working or not. So that thing is managed by smoke testing. Okay. And for another example is that suppose that your applications has been completed 80 to 90% and you check that the last stages of builds is successfully implemented all the features. Okay, so that is implemented by the sanity test. So that is the difference between both of them, nothing else.
ठीक है। तो इंटरव्यूज़ में अभी जो है आपका बहुत सारा लिमिटेशन है, मैं एक एक करके लिमिटेशन बताता हूँ आपको, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। थोड़ा सा मतलब आपको देखो ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को आप पूरी तरह से बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, भले आप हिंदी यूज़ करिए, इंग्लिश यूज़ करिए, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज, फ्रेंच यूज़ करिए, जर्मन यूज़ करिए, पर कॉन्फिडेंस तो पहले अच्छा करिए। ठीक है, कम से कम मतलब भले गलत आंसर दीजिए पर बोलने को प्रयास तो करिए। ठीक है, साइलेंट वाला जो आंसर होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका, आप जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो आपको खुद ही पता नहीं है क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, सीक्वेंसेस, स्टेप्स आपको सही करना है कि कौन से लाइन को पहले स्टेप में बोलना है, कौन से लाइन को बाद में। स्टेप आपको समझ में तो आ रहा है, पर आपको थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ा आपके अंदर बैरियर्स है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस तो थोड़ा ठीक है, पर थोड़ा कंटेंट आप बढ़ाइए, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है, जैसे आप जो डेफिनेशन बता रहे हो वो बस बहुत शॉर्ट में बता रहे हो, तो उसको और थोड़ा सा आप उसके अंदर कंटेंट ऐड करिए, थोड़ा उसको कुछ देर तक बताइए। ठीक है, और एक्चुअली जैसे आपने डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन आपने पहले लाइन में ही सही बता दिया था, फिर अननेसेसरी उस चीज़ को क्यों बढ़ा रहे हो? जब आपने एक लाइन में स्टेटमेंट खत्म कर दिया तो फिर उसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? वहीं पे खत्म हो जाए ना, फुल स्टॉप। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये है जहां पर आपको आगे नहीं बढ़ना है, आप कहीं उसको आपको इतना ज्यादा डेप्थ में बता दिया कि वो इसी चीज को 3 बार बोल दिया। ठीक है, और आपके अंदर समस्या ये है कि आपको मतलब आता है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, भूल जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है, और साथ में थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी सही करना है। जैसे कभी आपको इंटरव्यू में कोई भी प्रश्न नहीं आए तो कभी हंसना मत। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल रोने जैसा शकल कर लो, मतलब एक जो नॉर्मल जैसे रहता है ना बॉडी लैंग्वेज, वो आप शो करिए, कॉन्फिडेंस वाला बॉडी लैंग्वेज शो करिए। जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपका बॉडी लैंग्वेज सही है, आपका भी सही है बॉडी लैंग्वेज, आपका थोड़ा सा समस्या कहाँ पर है? बोलने में समस्या। आपके बॉडी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा कंटेंट और मैनेज करिए। आप अपने अंदर जो कंटेंट है ना, मतलब जो पढ़ने का जो लैंग्वेज का जो पर्टिकुलर आपका डेफिनेशन है, जैसे उसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझाइए। ठीक है, तो ये सुधार करिए, और नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर से चीज़ें इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, चलिए, कांग्रेचुलेशन।